students, how are you all? Hope you all must be going very well. Let's start a new chapter today of class 5th, which is chapter number 7 about soil erosion and conservation. So first of all, we have to find more about the soil. What is soil? Soil is the uppermost layer of the earth, right? Soil makes up the surface of the earth. हमारा जो earth surface है, that is made up of soil only. Soil is a natural resource. Plants or trees grow in the soil. All the animals depend on soil only, directly or indirect. Formation of soil. Soil is formed from the rocks by the action of air, water and sun. The rocks पे air, water, रेन का, सन का एक्शन हुआ, उसके थ्रू धीरे धीरे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ. सन की हीट की वजह से फ्लोइंग वाटर एंड ब्लोइंग एयर, these are some major factors by which the rocks got transformed into soil. The soil erosion. Soil is formed from rocks. Soil जो है rock से बनी है. As soil is lighter than rocks, क्योंकि soil जो है rock से comparison में काफी lighter है. So soil can easily be carried away from one place to another through wind or water or man activity. Okay, because rock से comparison में काफी lightweight होती है, इसीलिए soil easily एक place से दूसरे place पे carry away हो जाती है wind, water या किसी भी human activity के through. The process of carrying away the topsoil by wind or flowing water is known as soil erosion. And एक ऐसा process जहाँ पे water को carry away किया जाता है, okay, या water soil अपने आप जो है carry away होती है, किसकी वजह से? By wind or by flowing water. This process is called soil erosion. The loss of fertile topsoil. अब जब इस fertile topsoil का क्या होता है? Loss होता है, इससे जो land है वो unfit हो जाती है for the purpose of farming. Because topsoil is the most fertile layer and it only gets lost due to soil erosion. Soil erosion occurs in those areas. Soil erosion जो soil erosion है वो उन areas में होता है जहाँ पे topsoil आपकी काफी कम होती है and उसमें plants and trees से जो land है वो covered नहीं होती है. ओके, लैंडस्लाइड्स, ग्लेशियर्स, ये भी कुछ एजेंट्स है सॉइल इरोजन के. नेक्स्ट इज एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन. अब क्या क्या एजेंट्स है सॉइल इरोजन के? नंबर 1, रनिंग वाटर. तो रनिंग वाटर जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉइल इरोजन कॉज करता है. फ्लड्स जो है वो ज्यादा टॉप सॉइल कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिल्ट. यू कैन सी दिस इज द सॉइल इरोजन बाय वाटर. देन नेक्स्ट वी हैव विंड. सो इन ओपन लैंड्स में क्या होता है? जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, दे कैरी अवे गुड अमाउंट ऑफ टॉप सॉइल. जो ओपन लैंड होंगी वहाँ पे जो जब तेज हवाएं चलती है वो अच्छी खासी टॉप सॉइल को आप कैरी करती हैं, क्योंकि टॉप सॉइल लाइट वेटेड होती है, तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में कैरी अवे होना काफी आसान हो जाता है. When this fertile layer of soil is gone, अब जब ये फर्टाइल लेयर जो है सॉइल की ये आपकी चली जाती है, तो जो न्यू प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते. इट अफेक्ट्स द फार्मर्स ऑल्सो, बिकॉज टॉप सॉइल के साथ जो मिन्योर है दैट इज ऑल्सो ब्लोन अवे ड्यू टू सॉइल इरोजन. देन ह्यूमन बींग्स. अब ह्यूमन बींग्स की भी एक्टिविटीज हैं काफी सारी जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है. नंबर 1, डिफॉरेस्टेशन. So human activities are also responsible for causing soil erosion. Cutting of trees. जब trees और plants को कट किया जाता है that is known as deforestation. And जब हम plants and trees को कट करते हैं तो जो top soil है वो lose हो जाती है. Then it can be easily carried away by the strong wind or running water. Next, overgrazing. When animals, जब animals जैसे कि cattle, sheep, goats इस सेम एरिया प्लांट पे ग्रेज करते हैं अगेन एंड अगेन, तो वो मोस्ट ऑफ द ग्रीन ग्रास को खा जाते हैं या जो अदर प्लांट्स है दे ईट अप ऑल दोस. सो ओवरग्रेजिंग बाय कैटल. अब कैटल के थ्रू जो ओवरग्रेजिंग होती है इससे भी सॉइल इरोजन होता है, बिकॉज वहाँ पे जो कवरेज है ग्रास के थ्रू वो नहीं बचता एंड सॉइल लूज हो जाती है. एंड ये लूज सॉइल को क्या इजिली कैरी अवे करना आसान हो जाता है बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स और फ्लोइंग वाटर. देन वी हैव सॉइल कंजर्वेशन. Soil is very important natural resource, as we all know. So we should protect it from erosion. The protection of soil from erosion is called conservation of soil. So soil को protect करना erosion से, that is only known as soil conservation. The soil erosion एक serious problem है students to all of us, especially to the farmers, right? It is our duty to conserve the soil. So now they have given you some ways by which we can prevent the soil erosion. Number 1, we have afforestation. To save the topsoil. So topsoil को save करने के लिए we should plant more and more trees, small plants, because their roots, because इनकी जो roots होती हैं वो soil को tightly hold करके रखती हैं and soil erosion को avoid करती हैं. Growing of trees on large scale in place of cut down trees is called afforestation. Okay, जब हम एक बड़े स्केल पे trees को grow करते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर trees को cut down किया गया था, उस process को afforestation कहा जाता है. The second is growing grass. If the plain field can be covered, अगर plain field को हम अगर grass से या कुछ fast growing plant से cover कर सकते हैं just to cover the soil.
क्या करने के लिए, केवल सॉइल को कवर करने के लिए। सो हम वहाँ पे टॉप सॉइल के लॉस को अवॉइड कर सकते हैं। देन वी हैव अवॉइड overgrazing. We should take care that the grazing animals are not allowed to graze on the same areas of land for a long time. तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स है वो आपके सेम एरिया ऑफ लैंड पे एक लंबे समय तक ग्रेजिंग ना करे, बिकॉज ओवर ग्रेजिंग ऑल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैकमेंट, स्ट्रॉन्ग एम्बैकमेंट्स जो है रॉक्स एंड स्टोन्स के, वो कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं इन बोथ द साइड्स ऑफ अ रिवर और अ स्ट्रीम, बिकॉज इट वुड हेल्प प्रिवेंट फ्लडिंग ऑफ वाटर। इससे जो है वाटर की फ्लडिंग को रोका जा सकता है इन द एडजॉइनिंग फील्ड्स, एंड इट विल ऑल्सो चेक द सॉइल इरोजन। नाउ द लास्ट वी हैव स्टेप फार्मिंग। सो हिली एरियाज आर स्लैंटिंग, हिली एरियाज जो है स्लैंटिंग होते हैं, इससे जो रेन वाटर है वो ज़्यादा रैपिडली वहाँ पे फ्लो करता है, एंड रेन वाटर अपने साथ एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल को कैरी करता है। फार्मिंग इज डन बाय स्टेप्स इन दिस एरिया, इसीलिए इन एरियाज में फार्मिंग को स्टेप फॉर्मेशन में किया जा सकता है, और इसी मेथड को स्टेप फार्मिंग कहते हैं। यू कैन सी दिस इज द स्टेप फार्मिंग, राइट। दिस रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ वाटर, इससे क्या होता है, वाटर की स्पीड रिड्यूस हो जाती है, एंड इट ऑल्सो चेक्स अ सॉइल इरोजन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you must have understood the concept of soil erosion and the ways by which we can conserve the soil. Okay, we can prevent the soil erosion. That's all for today. Let's meet in the next class, and then take care and thanks to everyone.